اور مظفر گڑھ سے آپ کو بتاتے چلے تھانہ سٹی مظفر گڑھ میں ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی پریس کانفرنس۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ساجد گبول کی رپورٹ کے مطابق مختلف تھانوں سے ڈکیتی ہونے والی 35 موٹر سائیکل ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کی گئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ نے موٹر سائیکلوں کی چابیاں مالکان کے حوالے کی۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری اور مزید موٹر سائیکل ریکور کر کے مالکان کے حوالے کیے جائیں گے۔ موٹر سائیکل مالکان بھی اپنی موٹر سائیکلوں کو مناسب لاک لگوا کر پارکنگ ایریا میں کھڑی کیا کرے۔ ایس پی ضیاء اللہ مظفر گڑھ کی میڈیا سے بات چیت۔ پولیس لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہم جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور بنیادی طور پر ہم لوگ جو ہیں ضلعی سطح پر یہ ایک ہم نے پریس کانفرنس کی ہے جناب ڈی پی او صاحب نے آر پی او صاحب کی ہدایات کی روشنی میں، کیونکہ جس وقت آر پی او صاحب یہاں تشریف لائے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ اپنائیں کہ اس میں جو موٹر سائیکل چوری کر رہا ہے صرف وہی نہیں ہے، یہ آگے سے جو کرایہ کش آگے لے کے جا رہا ہے، اسے جہاں ڈمپ کیا جا رہا ہے، اس پورے سلسلے کو دیکھا جائے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو موٹر سائیکل چور ہیں انہیں پکڑا ہے، ان کے ساتھ جو کرایہ کش ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے آگے ان کے ریسیور ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ کارروائی صرف یہیں تک نہیں محدود رہے گی، اسے آگے تک چلایا جائے گا۔ چونکہ ضلعی سطح پہ یہ کام ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کتنی موٹر سائیکلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب صحافی بھائیوں کی آمد کا شکریہ۔ آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد تھا کہ مظفر گڑھ پولیس نے پچھلے چند دنوں میں کافی اچھی جو تھی وہ پروگریس کی تھی، اسپیشلی موٹر سائیکل سنیچنگ میں، جس میں ہم نے مختلف پولیس اسٹیشنز میں جو چھینی گئی موٹر سائیکلیں تھیں جن کی تعداد کوئی 34 ہے 34، وہ ہم نے الحمدللہ ریکور کی۔ اور اس میں پولیس ٹیم نے جو اپنا ورک کیا، ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے مالکان ہیں یا جن کی وہ جو مسروقہ جائیداد تھی، جو بھی پراپرٹی تھی ان کی موٹر سائیکلیں، تاکہ ان کو ہم ریٹرن کر سکیں۔ تو اس ضمن میں تھانہ سٹی مظفر گڑھ، سول لائن، سٹی کوٹ ادو، سٹی علی پور، سناوا، روہیلا والی، قریشی، خان گڑھ، اور اسی طرح سے محمود کوٹ، تھانہ بیٹ، میر ہزار، اکراس دا ڈسٹرکٹ۔ مرید کے سے آپ کو بتاتے چلے مرید کے میں سیاسی و سماجی شخصیات مدثر شاہ اور شفیق بٹ کی جانب سے آزاد امیدوار کے اعزاز میں پروقار عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ جی بالکل، ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف چودھری مصطفیٰ جٹ کی رپورٹ کے مطابق سٹی کیفے مرید کے میں آزاد امیدوار برائے MNA یوسف رضا کاظمی کے اعزاز میں پروقار عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر یوسف رضا کاظمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کی ناکام پالیسیاں ملک پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ستائے ہوئے خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کو عوام کے حال پر رحم کھا کر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ یعنی جو چیزیں میں سمجھتا ہوں ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں، اور یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل وقت آ گیا ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ، کہ لوگوں کے لیے اپنا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ، مخلوط گورنمنٹ بنی ہے، ان کا کیا ویژن ہے، ان کی کیا سوچ ہے، یا ان کے ذہن میں کیا فارمولہ ہے کہ ایک غریب آدمی اپنی 15,000 20,000 کی تنخواہ میں، جس کے 2-4 بچے بھی ہوں، فیملی ممبر ہوں، وہ اتنی مہنگائی گھی لا سکتا ہے، سبزیاں لا سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہے، چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے، تو میرے خیال میں یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، اور یہ موجودہ گورنمنٹ کی نااہلی میں آتا ہے۔ ان کو مہربانی کر کے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور یہ ترس کھائیں غریب عوام کے اوپر، مزدور، کسان، دیہڑی دار۔ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اپنے بچے پالنا، اپنا گھر چلانا،
बच्चों को स्कूल भेजना। और इकबाल टाउन लाहौर से आपको बताते चले, उम्मत मुसलमा यूथ की जानिब से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मज़म्मती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में कसीर तादाद में शुरका ने शिरकत की। शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे जिन पर गुस्ताखे रसूल की क्या सज़ा, सरतन से जुदा के नारे दर्ज थे। हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक रैली का आगाज़ मुस्तफ़ा टाउन से होकर मुल्तान चुंगी से होते हुए इकबाल टाउन करीम ब्लॉक न्यू रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। रैली की क़यादत महर असलम बग्गा यूथ लीडर, मोहम्मद उमर भट्टी, मलिक सदाकत खोखर, महर जवाद लाडा, मलिक काशिफ खोखर, हाफिज़ मोहम्मद उसामा, SYP मलिक इफ्तिखार खोखर, सैयद मोहम्मद अहमद राना उसामा सईद, जाहिद जट, जिब्रान खोखर, जुहेब सईद, बिलाल भट्ट, अमीर खान, सैयद आफाक शाह, सलमान बिल्ला, वसीम खोखर, शेख हसीब खोखर, अब्दुल्ला शहजाद ने की। रैली में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, सरतन से जुदा के फलक शगाफ नारे भी लगाए। भारतीय मलऊना नूपुर शर्मा को फांसी दो। मुकर्रिरीन का कहना था कि भारतीय खातून की जानिब से शान रसालत में गुस्ताखी से आलम इस्लाम के दिल में शदीद गम व गुस्सा है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक़द्दसात की तौहीन दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। भारतीय हुक्मरान जमात की तर्जुमान मलूना नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार करके तौहीन मज़हब के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करके तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ता करके मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। भारत को मुतनब्बा करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों की ज़ुबानें काट देंगे। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे इसको जीने का कोई हक नहीं। नूपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत सज़ा दी जाए, वरना अवाम कानून हाथ में लेने पर मजबूर होंगे। शहर भर में उलमा इकराम ने मसाजिद में खुतबात में नामूस रिसालत पर मज़म्मत की और मलऊना के खिलाफ करारदादें भी मंजूर करवाईं। और पीर महल से आपको बताते चले, पीर महल के नवाही गाँव 672/13 में यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने फिरौनियत इख्तियार कर ली। आने वाले लोगों के साथ बद इखलाकी और गालम गलोच करने लगे। लोग भी मैदान अमल में आ गए। उन्होंने एरिया मैनेजर से फौरी तौर पर अमले को मुअत्तल करके नए अमले के तैनाती की दरख्वास्त कर दी। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट की जानिब से दूर दराज के इलाकों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए जहां आवाम को सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह नवाही चक 672/13 में वाक़या यूटिलिटी स्टोर का अमला जो कि अरसा दराज से सिफारिशात के तहत तैनात अमले ने गवर्नमेंट के दिए रिलीफ पैकेज को आवाम तक पहुँचाने में अपने आप को वक्त का हाकम समझते हुए मन मर्जी से देने का फैसला किया हुआ है और घंटों घंटों इंतज़ार करवाना मामूल बन गया। अगर कोई ख़रीदार कहे कि आप इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं तो अमला गालम गलोच करता है, बद अखलाक रवैया भी अपनाता है, जिस पर अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 13 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟੀ ਸਟੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਘੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਘੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਰੈਂਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੱਲਣ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਕਾਮ ਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ਤ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਂਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੈਂਟੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ हुकूमत से अपील आ इन्होंने बरतरफ किया जाए। यूटी स्टोर वाला जो को अं गए घे तो चीनी का पता कर उन्होंने साडा मुख मोड़ के भेजता भी कल नूं आए, कल नूं असीं आए हैं, कल भी सानूं नहीं मिलिया।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। दुकान वाले का हक नहीं कि गरीब आवाम का हक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले तहसील काजी अहमद में बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली नवाज जतोई की तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नामजद उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में SUP के मरकज़ी रहनुमा सैयद जैन शाह चौधरी, आरिफ नियाज और सज्जाद अली लाखू काफिले की सूरत में नवाब वली मोहम्मद की जानिब वर्क के लिए जाते हुए काजी अहमद पहुँचे तो शहरियों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सैयद जैन शाह ने कारकुनों के भरपूर नारों का जवाब हाथ से हाथ मिलाकर दिया। और मिंजनाबाद से आपको बताते चले बार एसोसिएशन में नए बनने वाले चैम्बर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाहजेब पराचा की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक मिंजनाबाद बार एसोसिएशन में नए बनने वाले चैम्बर्स का इफ्तिताह फीता काट कर दिया गया। इस मौके पर मौजूदा सदर जनरल सेक्रेटरी साबका सदर जनरल सेक्रेटरी ने अपने दीगर वकला के हमरा नए चैम्बर्स का इफ्तिताह फीता काट कर दिया गया। काटने के बाद दुआ हुई, सब वकला को मिठाई खिलाई गई। बाज़ा बाबद सईद गौरी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंजनाबाद ने तमाम प्रेस क्लब्स के अहदेदारान को प्रोग्राम में वेलकम किया और इनको बताया कि नए बनने वाले चैम्बर्स का प्रोजेक्ट अपनी मदद आपके तहत बनाया गया है, जिसको साबिक कैंडिडेट ने शुरू किया था, जिसमें 63 लोगों को अमीन ब्लाक में चैम्बर्स बजरिया ओपन कुरानंदाजी दिए गए हैं। इस मौके पर सीनियर वकला ने अपनी राय का इजहार किया और साबिक सदर सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के किरदार को सराहा गया। आखिर में सदर बार ने वकला को बताया कि वकला की फलाह का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस मौके पर पुरतकल्लफ इशाइया का एहतमाम भी किया गया। जी, और आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले अलीपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर में छोटे बच्चों को अगवा करने वाला खवातीन का गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अलीपुर छोटे मासूम बच्चों को अगवा करने वाली खवातीन का गिरोह पकड़ लिया गया। गुज़िश्ता दिनों से खवातीन औरतें फ़कीर के लिबास में मुख्तलिफ बस्तियों से गदा रेडी पर भीख मांगने के बहाने छोटे मासूम बच्चों को अगवा करके ले जाती हैं। पूरे इलाके में खौफ व हिरास पैदा हो गया था। अमरूज वही खवातीन अगवा कार गिरोह बस्ती गुलाम मोहम्मद से बच्चे को अगवा करके बोरी में डालकर चौक परमिट से एक और बच्चे को अगवा करती हुई पकड़ी गई। अहले इलाका ने जब तलाशी ली तो बोरी में बंद एक बच्चा बरामद हुआ। अहले इलाका ने अच्छी छतरोल के बाद जहांपुर चौकी के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खोता रेडियो पर सवार फ़कीर नुमा औरतों ने बस्ती गुलाम मोहम्मद से बच्चे को अगवा करके बोरी में डाला और इसके बाद परमिट चौक पर बच्चे को अगवा करते हुए पकड़ी गई और अहले इलाका ने अच्छी छतरोल के बाद जहांपुर चौकी के हवाले कर दिया। और बात करेंगे किताब तहकीकात हसनात की, जिसकी मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम सूबों से अदबी और इल्मी शऊर रखने वाले लोगों ने किताब को बेहद पसंद किया है। मोहसिन उर्दू और मशहूर ज़माना किताब रमा दमा के मुसन्निफ़ पीर अब्दुल खालिक हसनात ने अपनी नई किताब तहकीकात हसनात में अल्फाज का ऐसा चुनाव किया कि आलमी रिकॉर्ड तक तोड़ डाले। इस किताब की मांग में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और मुल्क के तमाम सूबों के अदबी और इल्मी हलकों में इस वक्त मारूफ किताब तहकीकात हसनात की शोहरत के चर्चे भी आम हैं। मुख्तलिफ ममालिक के बुजुर्गान दीन ने मोहसिन उर्दू को ये किताब लिखने पर मुबारकबाद पेश की है। मोहसिन उर्दू पीर अब्दुल खालिक हसनात ने अपनी नई किताब तहकीकात हसनात में अल्फाज का ऐसा उम्दा चुनाव किया कि आलमी रिकॉर्ड तक तोड़ डाले। ये किताब तसव्वुफ़ पर लिखी गई है जो कि इस्लाम का अहम तरीन शोबा है और इस किताब का मुतालिया आम व ख़ास के लिए ना सिर्फ इंतहाई मुफीद बल्कि दीनी और दुनियावी अमूर में कामयाबी हासिल करने का अहम तरीन ज़रिया भी है। आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले पूरे मुल्क की तरह हारूनाबाद में भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत महमूद बसरा ने की। हमारे नुमाइंदे की तफसीलात के मुताबिक पोटेड हुकूमत ने 2 माह में ही महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया।
शौकत महमूद बसरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीकी साजिश के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया। इस हुकूमत ने कौम का मुस्तकबिल तारीख राहों में डाल दिया है। राव शुएब अहमद ने भी मज़ीद बातचीत की। अमरीकी साजिश नाकाम होगी और इमरान खान का फौरी इलेक्शन का बयानिया कामयाब होगा। मियाँ अब्दुल वाहिद की मीडिया से गुफ्तगू, हम अमरीकी गुलामी को मुस्तरद करते हैं और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इमरान खान का फौरी इलेक्शन का बयानिया कामयाब होगा और इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। मज़ीद वरना एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी जिस पर कारकुनान ने इमरान खान का खिताब सुना और उनकी कॉल पर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने का अज़्म किया। इलेक्शन होने जा रहा है, तैयारी कर लो। इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, पेट्रोल बम, पेट्रोल बम, बिजली बम, महंगाई, पाकिस्तान